Dear student, our chapter 9 positional average and partition values, and our topic is median and quartile is going on. Median, lower quartile and upper quartile. Here the first question is, from the following information of wages of 30 workers are given and find the median, lower and upper quartile. Here the wages are given. Here the wages are given in a particular series. $120, $170, $210. इसको वर्टिकल ले लेते हैं. 120, 170, 210, 240, 260, 270, 300, 320, 330, 3 times. 350, 370, 380 and 380. ये फर्स्ट 15 है. फिर नेक्स्ट है 400, 420, 440, 440, 450, 470, 482 times. These wages are given for 30 workers and calculate the median, lower quartile and upper quartile. A 30 observation given. 15 and 15, 30. So there are n equal to 30. And first of all, calculate the median. These are the individual observation. And the formula for the individual and discrete observation is median equal to size of n plus 1 by 2. Size of n plus 1 by 2. Here the size is, where n is 30. 30 plus 1 by 2. That is size of 31 by 2. 31 by 2 is 15.5. And the meaning of the size of 15.5 is the average of 15 and 16, because 15.5 is lying between 15 and 16. So that is the average of 15th term, your 15th observation plus 16th term by 2. So the median is, here the 15th term is 380 and 16th term is 400. So 380 plus 400 upon 2. So whose sum is 780 by 2. And 780 by 2 is 390. So finally the median is 390. Next, lower quartile and upper quartile. So next we are finding the lower quartile. Lower quartile means Q1. Median is the Q2 and upper quartile is Q3. Q1, Q2 and Q3. Next Q1. Q1 is the size of n plus 1 by 2 median. n plus 1 by 4 हो जाएगा तो 50%. 50% is the lower quartile. So here the size of, here n is 30 plus 1 by 4. पहले तो इसको डेसिमल वैल्यू फाइंड कर लो.
31/4 है, तो 31/4 है तो आपका 4 7 28 पॉइंट, ये 3 है 30 अगेन 4 7 28 एंड 4 5 20 7.75। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई 7.75। अब इसको ऑब्जर्वेशन में कैसे देखना है, तो 7.75 here the seventh size is completed whole number, so seventh observation तो पूरा complete whole होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, तो seventh observation is a whole number and after the seventh observation we should find the value of 0.75, so 0.75 is the 3/4, तो 3/4 value is after seventh, so is the difference of seventh and eighth term, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 20, उस 20 का 3/4, find the 0.75 that is the 3/4 portion of the value of 20, because 300 is the seventh observation. After the seventh next observation is 320, so difference is 20 and complete difference are not founded because the complete difference is the eighth term. So here the median is seventh observation plus 3/4 part of the difference of seventh and eighth. So eighth observation minus seventh observation. तो सेवंथ ऑब्जर्वेशन तो हो गया आपका 300, फिर 3/4 पार्ट, और ये है आपका 320, ये एट्थ ऑब्जर्वेशन, ये 7, तो 320 माइनस 300, बस इसको कैलकुलेट करना है, 300 प्लस 3/4 इंटू 20, 4 5 20, 5 3 15 and 300 plus 15 315, so 315 is the Q1, 315 is lying between this, so 300 is not Q1, 320 is not Q1 and 315 is the Q1. Next find the upper quartile Q3, Q3 ये का ये n plus 1/4, यहाँ 3/4 हो जाएगा 3n plus 1/4, तो ये भी 3, तो इसमें 3 से इंटू कर लो, 7.75, 3 times of 7.75, first of all multiply the 3 into 7.75, so the size of ये आपका 3 5 15, 1 carry, 3 7 21 and 1 22, 2 carry and point 3 7 21 and 2 23, 23.25, तो 0.25 is the 1/4, तो यहाँ पर 23 तो हो गया होल नंबर कंप्लीट, तो ये आपका 15th ऑब्जर्वेशन, ये 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 तो हो गया अपना एग्जैक्ट। 23rd ऑब्जर्वेशन प्लस 1/4 पार्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ 24 एंड 23, ये 24 और ये 23, 24th ऑब्जर्वेशन माइनस 23rd ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस है नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, सो नेक्स्ट वैल्यू इज आल्सो 480, कोई बात नहीं, जीरो डिफरेंस हो जाएगा। 23rd ऑब्जर्वेशन, 23rd ऑब्जर्वेशन इज 480, एक बार और चेक कर लेते, ये 15 है, 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 इज द 480 एंड नेक्स्ट वैल्यू है 490, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ 10, तो 1/4, ये अपना 490 माइनस 480, जीरो डिफरेंस नहीं है, ये नेक्स्ट वैल्यू है। मैंने इन दोनों को देखा था, ये 22 है, ये 23 है, और हमें देखना है 24th एंड 23, सो 480 और ये
ये अगर आपका 10/4 10/4 होगा आपका 2.25. So 482.25 is the Q3. So Q1 अपना आंसर था 315 315. Q2 is the median और मीडियन अपना आंसर था 380 और 390 का 400 का एवरेज 390. एंड Q3 is the related for 23rd and 24th term, that is 482.25. that is Q1, Q2 and Q3. ये अब अपना मीडियन टॉपिक कंप्लीट है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द मोड. मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन. Our next topic is mode. ये चैप्टर 9 में लास्ट टॉपिक है mode. You are familiar with the mode. For finding the mode, we should count the most frequently observation. हम maximum frequency को देखते हैं, but यहाँ पर observation का type different होगा. So generally the three type of observation are given. Individual observation 1 2 3 3 4 4 4 5 and 5. The individual observation are given. Then observe the most frequently observation. So here the mode is the 4. एक simple सा example. So for the individual observation, finding the mode is very simple, most frequently observation. But in the discrete and continuous observation, the examples are given xi in fi. Here 10, 30, 50, 70, 90. Here the frequencies 2, 3, 5, 5 and 6. So here sometimes the frequency may be same. So here mode may be 50 or 70. So in this case, in our class 11, here we are using a grouping method. So for a particular question of mode for this class, we are using the grouping method for the discrete observation or the continuous observation. In the individual observation directly we can say, but all the questions are mostly given in the discrete and continuous observation. So here we are using a grouping method and find the exact model class. अब इन दोनों में से मॉडल कौन सा है? समटाइम द डिफरेंस में भी वेरी माइनर, ये भी हो सकता है कई बार 5 6 7. तब भी जनरली तो हम यही देखेंगे कि 7 इज द मोस्ट फ्रीक्वेंसी, बट 70 समटाइम इट मे बी रॉन्ग and some minor difference are given. So all these things can be clear by the grouping method. अब एक क्वेश्चन लेते हैं और सीधे ग्रुपिंग मेथड को समझते हैं. ग्रुपिंग मेथड डिसाइड करती है मॉडल क्लास को, एंड आफ्टर द डिसीजन ऑफ मॉडल क्लास वी शुड यूज ए पर्टिकुलर फार्मूला फॉर द कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, और डिस्क्रीट के लिए तो डायरेक्टली आंसर मिल जाता है वहीं से. Here we are taking a question. Here the central size of a particular 10 observation are given. The central value, mid value, and their frequency are given. Then find out the mode of the following frequency distribution. अब इसे एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. So if the observation are discrete, then we can convert it into the continuous class interval because it is the mid value. ये mid value है तो इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो 0.5 is the difference of this minus and plus, तो 1 से 0.5 माइनस कर लो तो 0.5,
एंड 1.5, तो ये हो जाएगा अपना 0.5 टू 1.5। फिर नेक्स्ट 1.5 टू 2.5, फिर 2.5 टू 3, 2.5 to 3.5, and 3.5 to 4.5, 4.5 to 5.5, and 5.5 to 6.5, 6.5 to 7.5, and 7.5 to 8.5, 8.5 to 9.5, and 9.5 to 10.5. We should convert this mid value into the continuous class interval, because the lower limit of the model class are required for finding the mode। अगर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं तो उसमें लोअर लिमिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जनरली फॉर द ऑब्जर्वेशन 20 is the most frequently, so definitely the answer are lying between this, ये इसमें से ही आंसर होगा। but the exact calculation we are using the grouping for all the question, if the difference may be minor for the two frequencies, sometimes the frequency may be same। इस सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ग्रुपिंग मेथड है। ग्रुपिंग मेथड में 6 कॉलम बनते हैं। अब यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन देखना, सबसे फर्स्ट कॉलम तो यही आपका फ्रीक्वेंसी का, सेकंड कॉलम में फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, 8 + 6 14, ये आपका 22, फिर नेक्स्ट ये आपका 32, और 5 और 3 8, और ये 2 + 4 6। We should find the exact model class with the help of grouping। थर्ड 6 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम अपना फ्रीक्वेंसी, सेकंड कॉलम में दो फ्रीक्वेंसी का सम, नेक्स्ट कॉलम में एक को छोड़ दो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज लीव एंड नेक्स्ट कंटिन्यूस टू, इन दोनों को ले लो। ये अपना 16, ये अपना 32, इसके लिए ये 12 और 5 17, और 3 + 2 5। अब एक बच रहा है, उसको छोड़ दो। फर्स्ट डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में दो का सम, थर्ड में फर्स्ट को लीव कर दो, 2 का सम। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम 3 फ्रीक्वेंसी का सम, ये ध्यान रखना, 2 का सम है, फिर एक को छोड़ के 2 का सम, फिर 3 फ्रीक्वेंसी का सम, और सब कुछ हो रहा है एफ के अंदर। फर्स्ट तीनों का सम 8 6 और ये 10, 8 और 6 14 और 10 24। यहाँ पर इन तीनों का सम हो जाएगा, ये 4 और ये अपना 44, ये 5 3 2, 5 4 3 8 और 2 10, इन तीनों का सम। ठीक, अब नेक्स्ट फिफ्थ में वापिस वही 3 का सम हुआ, फर्स्ट को छोड़ दो, फिर 3 का सम, इनका ले लो, ये अपना 8, और लिखो मिडिल में इसकी 6 और 2 8, और ये 28। फिर अब यहाँ पर अपना 7 और ये 3, फर्स्ट को छोड़ा, इन तीनों का सम, फिर इन तीनों का सम, और लास्ट में ये तीनों बच रहे, 3 और 2 5 और 4 9। लास्ट कॉलम में यहाँ पर एक को छोड़ा था, आप 2 को छोड़ दो, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को लीव कर दो, इन तीनों का सम यहाँ पे लिखेंगे, इन तीनों का सम, ये 2 और ये 42, ये तीनों हो गए। फिर नेक्स्ट ये 3, ये हो गया अपना 20। अब यहाँ 2 ही है, इनको छोड़ो, ये तो हो गए 6 ग्रुपिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट बनता है एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल इसी के कंटिन्यू में बना लेते हैं। एनालिसिस टेबल में क्या करते हैं,
हर कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको पहले सर्कल कर दो। यहाँ 20 मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है आपका 32, इसमें मैक्सिमम है अपना 32, यहाँ पर मैक्सिमम है 44, यहाँ पर मैक्सिमम है 37 और यहाँ पर मैक्सिमम है 42। अब हम सारे मैक्सिमम का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट मैक्सिमम किसका है, 4.5 का, ये इस कॉलम का, तो यहाँ पर इसका एक मार्क कर दो फर्स्ट के लिए, ठीक, उसी की सेट में एक टेली मार्क्स। नेक्स्ट वापिस एनालिसिस भी हो रहा है पूरा किसका, पूरी टेबल्स का, ठीक है, कंटिन्यूटी में। ठीक है, फर्स्ट टेली मार्क्स हो गया। नेक्स्ट 32 में देखना, 32 किसका है, इन दोनों का, तो एक तो ये और एक इसके नीचे सेकंड, ये सेकंड कॉलम का काम कंप्लीट। फिर ये देखो 32, अब ये 32 किसमें, 32 फ्रीक्वेंसी है, ये देखो ये दोनों का सम, तो एक तो ये और एक इसके ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट है। अब फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में है 44 और फोर्थ में 44 किसका सम है, 44 सम है इन तीनों वैल्यू का, ये तीनों का, तो तीनों के लिए टेली मार्क्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। 44 का रोल खत्म। फिर 37 में देखना, 37 किसके लिए, फर्स्ट एक को लीव किया था ये 3 और नेक्स्ट 3, ये 20 12 और 5, इन तीनों के लिए टेली मार्क्स 1 2 3। फिर लास्ट बचा एक और 42, तो 42 में ये दोनों छोड़ दो और इन तीनों को 2.5 से लेकर, तो ये 1 2 और एक इसके ऊपर है। अब ये फ्रीक्वेंसी, ये टेली मार्क्स है किसका, इस 2.5 से 3.5, इसी के डायरेक्शन पे सीध में, तो इसको कितने मार्क्स मिले, 1 मार्क्स। ये एनालिसिस यहाँ पे होगा। देयर आर 3 टेली मार्क्स, तो 3 and 3 6 टेली मार्क्स, ये अपना 3 और यहाँ पर 1। सो द हायर टेली मार्क्स is the 6 and 6 is the higher tally marks of the 4.5 to 5.5. So 4.5 to 5.5 is the model class. ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद फिर अपना हम फार्मूला यूज करेंगे और फिर मोड निकालेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला है MO इक्वल टू L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फिर आपका F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन F1 है, कौन F2 है और कौन F0 है। So the L is the lower limit of model class। मॉडल क्लास ये रही आपकी, ये मॉडल क्लास, तो ये 4.5। फिर F0 F1 और F2, तो आप इसको सीक्वेंस में ध्यान रखना, ये अपना F0, ये F1 किसकी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और ये F2 असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2, तो इसकी वैल्यू पुट कर लो। F1 20, F0 12, 2F1 2 into 20, F0 12, F2 वो भी 12 और इंटू I क्लास साइज, तो क्लास साइज तो कितनी है यहाँ पर 1, और अब इसका फाइनल आंसर निकाल लो 4.5 प्लस कैलकुलेशन है यहाँ पर 8 और ये तो हो गया आपका 40 और ये 24, ये 40 और ये 24, 16 इंटू 1 8 2 16,
4.5 plus 0.5, that is 5. So 5 is the mode, and 5 is lying between 4.5 to 5.5.